اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور مرحب سے مقابلے کے متعلق ہے۔ جب مرحب کو حضرت امام علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا تو سب حیران رہ گئے، اس لیے نہیں کہ اتنے طاقتور پہلوان کو کس نے قتل کیا، بلکہ اس لیے کہ مارنے والے نے تلوار کا صرف ایک ہی وار کیا تھا اور وہ بھی اس طرح کے جسم کے دو برابر ٹکڑے کر دیے۔ تلوار سر کے بیچ میں سے گزری، سیدھی ناک سے ہوتی ہوئی جسم کو چیر کر ٹانگوں کے بیچ میں سے نکلی، ایک جسم کے دو برابر ٹکڑے زمین پر گر گئے۔ لوگ حیران کے حیران رہ گئے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں سب دفاعی ہیں، دفاع کیا ہے، حملہ نہیں کیا۔ دوسرے حملہ کرتے تھے، لیکن خیبر کی جنگ واحد جنگ تھی جس میں آپ نے حملہ کیا۔ آپ نے کہا کہ میں آ رہا ہوں خیبر فتح کرنے، کیونکہ وہ یہودی مسلمانوں کو لوٹ لیتے تھے۔ تو مسلمانوں نے آ کے شکوہ کی کہ یا رسول اللہ، یہ خیبر میں یہودی، ہم جب بھی وہاں سے سفر کرتے ہیں وہ ہمیں لوٹ لیتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے پہلوان وہاں پر موجود ہیں، حارث ہے، انتر ہے، مرحب ہے، اور ان کا روب اتنا ہے کہ بہت طاقتور اور قداور ہیں، بہت بڑے بڑے جسم ہیں ان کے، تو ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مقابلہ کرنا تو دور کی بات، ان کا نام سن کر ہی عرب کے بڑے بڑے طاقتور بھی دور ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خط لکھا، اور اس خط میں لکھا تھا، میرے ماننے والوں کو تمہارا آئندہ کوئی بھی خیبر والا یہودی نہ لوٹے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا خط لکھا، پھر بھی وہ باز نہیں آئے۔ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ باز آ جاؤ، اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو میں خود خیبر آؤں گا اور خیبر فتح کروں گا۔ یہودیوں نے اپنی ایک میٹنگ بلوا لی اور کہا کہ محمد نے خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں، مرحب، حارث، انتر۔ مگر امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں بھی یہ تین ہی آئے تھے، جن میں سے دو کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قلعہ میں 40 دن میں فتح کروں گا۔ یہودی باز نہ آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مختصر فوج لے کر خیبر پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیبر کا قلعہ میں 40 دن میں فتح کروں گا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بھائی 40 سال بھی یہاں پر آ کے لوگ مقابلہ کرتے رہے ہیں اور ہم جنگجو ہیں، بڑے بڑے پہلوان ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیا اور خیبر پہنچ گئے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی صحابی علم اور لشکر لے کر قلعے کی طرف جاتا تھا، اور وہاں ان تینوں بھائیوں میں سے صرف ایک بھائی وہاں سے نکلتا تھا، اور نکل کر صرف اس لشکر کی طرف دیکھتا تو سارے اصحابی خوف کی وجہ سے واپس آ جاتے۔ اس طرح 39 دن گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ عشاء کا وقت تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ اصحابی قلعہ خیبر سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے تو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح حضرت امام علی علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں شدید درد تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت امام علی علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا، جس سے آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور علم حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام علم پاک لے کر خیبر کے قلعے کے قریب آئے۔ قلعے کے اندر حارث جنگ کی تیاری میں تھا کہ اسے بتایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھیجا ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلانے کے لیے۔ یہ سن کر حارث کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے نیزہ گر گیا۔ حارث کو اپنی ماں کی کہی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹو، کوئی بھی کتنا بھی طاقتور ہو تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، پر ہاں کبھی بھی حیدر نامی شخص سے نہ لڑنا۔ اور حارث یہ جانتا تھا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی حیدر ہے۔ خود کو دلاسا دیتے ہوئے اس نے نیزہ اٹھایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام خیبر کے دروازے کے پاس آ کر فرمانے لگے، اے حارث، کیا تم مد مقابل طلب کر رہے تھے؟ لو،
मैं आ गया हूँ, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। हारिस अपने घोड़े पर सवार किले से बाहर आया। हारिस के पास 3 हथियार थे, जिनमें नेजा, तलवार और गुर्ज शामिल थे। आते ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, ए अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा है, क्योंकि मैं मौत हूँ। मैं आसमान और जमीन के दरमियान में उल्फत की रस्सी हूँ। मेरी तलवार और नेज़े के सामने कौन ठहर सकता है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को फरमाया, हारिस, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूँ कि अहले मक्का के निस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का तुम्हें फरेब देते रहते हैं। वो हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है, और जो दीन मूसा कलीमुल्लाह लाए, हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस पुरजोश बयान को सुनकर हारिस गुस्से में लाल हो गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे जरा भी नरमी से बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरे नेज़े और तलवार के बर्दाश्त की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने से भाग ना जाना। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस से फरमाया, ए हारिस, सुनो, हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं, हमसे दुश्मनी में जल्दबाजी मत करो। उसके बाद हारिस ने गुस्से में अपने घोड़े को एर लगाई और तेजी से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ अपना नेज़ा सीधा रखे हुए बढ़ा और पूरी ताकत से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तकरीबन 4 या 5 वार किए, जिनसे हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खुद को बचा लिया। जब हारिस ने एक और वार किया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस के नेज़े को पकड़ लिया और खींचकर हारिस को घोड़े से नीचे गिरा दिया। हारिस एकदम हक्का बक्का रह गया कि मैं इतना ताकतवर हूँ और फिर भी इस नौजवान ने मुझे एक ही झटके में नीचे पटक दिया। ये देखकर हारिस के सारे सिपाही अपने सर पर हाथ रखकर सर पीटने लगे। हारिस जमीन पर फुदकता रहा और अपना गुर्ज उठाया। याद रहे कि पूरे मुकाबले में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही रही और आप खुद खाली हाथ हारिस के मुकाबले में सिर्फ उसको नसीहती करते रहे, लेकिन हारिस आप पर वार पे वार करता गया। जब हारिस ने गुर्ज उठाया और अंधाधुन आप पे वार करता गया और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उन वार को खाली जाने देते रहे। तकरीबन 8 से 15 वार हारिस ने गुर्ज के किए, जिसके बाद जोश में आकर हारिस ने अपनी तलवार निकाली और तलवार के भी तकरीबन 10 से 15 वार किए, लेकिन हर वार हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बचा लिया। उसके बाद हारिस हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहता है, अबू तालिब के बेटे, अपनी तलवार मियान से निकालो और मेरा मुकाबला करो। उसी वक्त हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार मियान से निकली। जुल्फकार हैदर का निकलना था, जैसे वक्त वहीं थम गया। पूरे लश्कर की निगाह हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार पर टिक गई। किसी को पता ही नहीं चला। जुल्फकार चली और हारिस के जिस्म को चीर कर निकली। एक ही वार में हारिस वासिले जहन्नम हो गया। पूरे खैबर के यहूदी खौफ से किले में भागने लगे। हारिस की लाश उठाने वाला भी कोई न था। फिर किले से 4 आदमी निकले जो हारिस की लाश को किले के अंदर ले गए। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हारिस को कत्ल किया तो उसके फौरन बाद मरहब अपने भाई की लाश देकर किला खैबर से बाहर आया। मरहब को जब बताया गया कि हारिस मारा जा चुका है तो उस बात पर मरहब को यकीन नहीं आ रहा था कि हारिस जैसे बहादुर और दिलेर जंगजू, जिसे देखकर ही बड़े बड़े बहादुर भी कांप जाते थे, उसे एक शख्स ने सिर्फ एक ही वार करके कत्ल कर दिया। मरहब ने सिपाहियों से पूछा कि वो कौन शख्स था जिसने मेरे भाई को कत्ल किया, तो उसे बताया गया कि वो हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो मरहब खुद हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए बाहर आए और किले से बाहर आते हुए ये अल्फाज कहता है, मैं रूहे जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। जब किले का दरवाजा खुला तो मरहब के साथ 200 से ज्यादा अफराद किले खैबर से बाहर निकले, और जब मरहब बाहर निकला तो उसके हाथ में 2 तलवारें थी। कुछ उलमा का बयान है कि 2 तलवारें और एक कुल्हाड़ी थी,
जब मरहब और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम आमने सामने हुए तो किले खैबर के सारे सिपाही खुशी से मरहब के नारे लगाने लगे। मरहब गुरूर और तकब्बुर से हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, तो मेरे भाई हारिस इब्न अबी ज़ैनब को तुमने कत्ल किया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो उसे अमान दी थी, लेकिन वो खुद जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर तुम इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी करता हूँ। मरहब ये बात सुनकर अपने गुरूर और ताकत में पूरे मजमुए को मुखातिब करके ये अल्फाज कहता है, क्या मैं मुसलमान हो जाऊं? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूँ, तो मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूँ? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, हम इलाही अध्यान एक दूसरे का दुआम है। जो रास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो जाता है। मरहब ने कहा कि उन बातों को छोड़ो, मर्द हो तो मेरा मुकाबला करो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तुम अपनी तलवारों को म्यान से निकालो और मेरी तलवारों के वार देखो। उस वक्त हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना नाम हैदर बताया तो मरहब के चेहरे का रंग उड़ गया और हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मरहब को अपनी माँ ने एक नजूमी से सुनकर बताया था कि तुम्हारे शेर जैसे बेटे होंगे जो कि बहुत ताकतवर होंगे, कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन उन्हें आगाह करना कि हैदर नामी शख्स से ना लड़ें। मरहब समझ चुका था कि ये वही हैदर है जिसके बारे में उसकी माँ ने उन्हें बताया था, लेकिन मरहब बहादुर था, इसलिए पीछे नहीं हटा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए तैयार हुआ। मरहब ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर 3 वार किए, जो कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खाली जाने दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मियान में ही थी और हाथ बिल्कुल खाली थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत और उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। मरहब गुस्से में लाल होकर वार पे वार करता गया और वार करते हुए कहता है, फजूल बातें मत करो, हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मरहब से फरमाया, हजरत मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे नबी हैं। उस पर मरहब ने कहा कि हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मरहब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार पे वार करता जा रहा था। जब मरहब ने हिदायत पाने से इनकार कर दिया तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान से निकाली और एक ही जोरदार वार से मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुल्फकार मरहब के सर से गुजरी और टांगों के बीच में से निकली। सारे सिपाही ये देखकर हैरान रह गए थे कि हुआ क्या। रोशनी की रफ्तार से तलवार चली और मरहब जैसा था वैसा ही खड़ा है। कुछ ही लम्हों के बाद जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार मियान में वापस डाली तो उसी वक्त सभी ने देखा कि मरहब के जिस्म का एक टुकड़ा एक तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ जमीन पर गिर गया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की इस बहादुरी को देखकर मुसलमानों के लश्कर में अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई और यहूदी अपने किले में वापस भाग गए और किले का दरवाजा बंद कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उस दरवाजे पर पहुंचकर एक हाथ दरवाजे के बीच में डाला और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां और एक अंगूठा दरवाजे के कोने में दसा लिया और दरवाजे को किले से उखाड़ कर सामने वाली खंदक पर रख दिया। और ये खैबर का किला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 ज़र्ब में फतह किया।